Hi everyone. Uh, Firstly, I'm sorry I was a little late. I was shooting elsewhere. Um, about Halla Bol, it is a very special film to me because not too many films that have a message but are not preachy. I mean, these days, and uh, it was being made by Rajkumar Santoshi, and Raji is someone whose work I've always admired. So I had every reason to do the film, and I'm so happy to have been part of it. Um, Everyone associated with the film, I think, has put in their very best, and I hope you all enjoy. Protagonist of the film. Um, Basically, Halla Bol, like Ajay was telling you all, is the journey of um, a man from being a real life, from being a real life to a real life hero, and I play his life partner, who's almost, you know, I'm like his conscience. I'm like, I hold a mirror to him and tell him that, I give him the strength in times of distress, um, when he has to make some crucial decisions that could alter the way, his life is. So that's what the character is all about. It's basically, I'm a strong-willed wife, mother, and all of that in Halla Bol. It is a small role, but I chose to do it because, like I said, not too many films of this kind are made, and when a film of this kind is made, then in whatever capacity you want to be part of it, especially when it's helmed by someone like Rajkumar Santoshi. What do you find special about your character? पहले उनका सवाल What do you find special about your character? Special about the character is the fact that, like I said, sometimes it's the character, and then sometimes it's also the film. To be part of a film like this in itself is special, and then it is a strong woman who helps her husband make certain crucial decisions. A lot of times it's very convenient, even for I play a star wife, and to be when you share a certain lifestyle, when you live a certain lifestyle, and when you have some comforts, sometimes you don't want to compromise that, so you compromise on your values. But she's not that kind of person. She's very rooted. So that is something that really appealed to me. एंड राजकुमार संतोषी के साथ मेरी पहली फिल्म है ये, और बहुत सालों से मैंने उनके सारी फिल्में देखी हैं, और बहुत ही वर्सेटाइल डायरेक्टर हैं. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं. तो जब उन्होंने मुझे हल्ला बोल ऑफ़र किया, और जब उन्होंने स्टोरी नरेट किया मुझे, तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं करूँगी. जो बारीकियाँ हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स के, जिस तरह से वो सोचते हैं और जिस तरह से वो लिखते हैं, मेरे ख्याल से इट्स बिन अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. बहुत ही वेल रेड है राज जी, और उनके साथ बैठ के ऐसे ही आप गुफ्तगू भी करें तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. तो बतौर डायरेक्टर जी, मैसेज दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी फिल्में कितना समाज पे असर करती हैं? आई थिंक कहीं ना कहीं यही होप होता है कि लोगों पे असर करे, कि काफ़ी बार होता है कि हम लोग अपने लाइफ्स में इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी स्टैंड लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. तो शायद ये फिल्म देख के काफ़ी लोग इंस्पायर हों. पर अच्छी बात यह है कि आज सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पब्लिक को मोबिलाइज किया जा रहा है थ्रू टेलीविजन चैनल्स, थ्रू वेरियस अदर मीडियम्स, और काफ़ी सारे केसेस इस तरह से सॉल्व हुए हैं. तो आई थिंक हल्ला बोल इज़ अ ग्रेट स्टेप इन दैट डायरेक्शन. हल्ला बोल एक्चुअली स्ट्रीट थिएटर जो है उसका कॉल है हल्ला बोल, या वॉर क्राई कह सकते हैं हल्ला बोल. तो उस तरह से जो अगर मैं बहुत ही आपको एक इंटेलेक्चुअल सा आपको जवाब दूं तो यही होगा कि जो सोया हुआ ज़मीर है उसको जगाने
के लिए हम कहते हैं हल्ला बोल। अजय के साथ अगेन अजय के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ और मुझे उनकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी लगती है। मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं और बहुत इंटेंस होते हुए भी वो बहुत ही अंडरस्टेटेड और नेचुरली परफॉर्म कर जाते हैं। तो उस टाइप के एफर्टलेस एक्टर के साथ काम करने में एक अलग ही मज़ा है। और एक ही फ्रेम में एक बार पंकज कपूर जी थे, अजय देवगन थे और लेक टंडन जी थे और मैं, तो मेरे लिए, and it was being directed by Rajkumar Santoshi, so that is one of my highlight moments. नहीं, मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि मैं सीरियस रोल्स ही करती रही हूँ ज़्यादातर। जैसे लगे रहो मुन्ना भाई थी, या फिर अभी मैं कर रही हूँ एक फिल्म लाकी चाम, तो हर फिल्म में मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। और हल्ला बोल जैसी फिल्में, हाँ, यहाँ ज़रा सा सीरियस सब्जेक्ट है और रोल का डिमांड था कि मैं उस टाइप से परफॉर्म करूँ, तो इस वजह से है। इट्स नॉट अ ट्रेंड द वे माय करियर इज गोइंग। इसमें दिखाया गया है कि अजय देवगन ने कितना स्ट्रगल किया है एज अ हीरो बनने के लिए, तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है इतनी। आई थिंक स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ। और हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, यानी पर मैं फिर भी अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि स्ट्रगल करते हुए भी इट वाज अबाउट गोइंग एंड प्रूविंग माय टैलेंट। कभी मुझे काम के लिए ऐसा या it was not a question of my survival, therefore I had the luxury of choice. काफी लोगों के पास वो होता नहीं है। पंकज कपूर थे, अजय देवगन थे, प्लस राजकुमार संतोषी थे, तो एक सीरियस माहौल का सेट पे बन चुका था या कुछ लाइटली माहौल था? नहीं, राज जी जिस तरह के इंसान हैं, बहुत ही मजाकिया है वो, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हम सबको हंसाते रहते हैं। और राज जी और अजय ने बहुत सारी फिल्म्स की है साथ में, तो माहौल तो बहुत इट यूज्ड टू बी कंफर्टेबल। बट हाँ, कोई सीरियस सीन चल रहा हो तो हंसी मजाक ज्यादा नहीं होता था। वो कहना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज एक सर्टेन ग्राफ है फिल्म की, तो काफ़ी सारे मेरे फेवरेट सीन्स हैं। और जब आप फिल्म देखेंगे उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी फेवरेट सीन कौन सी है, तब आपको समझ में आएगा। हमने जो प्रोमो देखे उसमें हर उसमें अजय देवगन ही दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है इस फिल्म में? ये फिल्म, it's a journey of a man, it's a journey of a man from being a real life to a real life hero. और बाकी सब जो किरदार हैं, we are all in some ways it's the story of this man and these characters are lending to the story. तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग खो जाएंगे या कुछ, we are integral to the story, और इसीलिए मैंने ये फिल्म की है। हाँ, छोटा रोल है, पर जानते हुए मैंने ये फिल्म किया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था पंकज जी, अजय देवगन जी और आपके साथ? ये दिस इज योर फर्स्ट फिल्म विद बोथ ऑफ देम, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? दोनों के साथ थोड़ा सा मैंने बहुत स्टार्स के साथ, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, पर पंकज कपूर जी और अजय देवगन के साथ काम करते वक्त थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस हुई थी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आई रियली एडमायर देम एज एक्टर्स, और मुझे यहाँ मौका मिल रहा था उनके साथ काम करने का। पर आई थिंक दे मेड मी फील क्वाइट कंफर्टेबल। संतोषी की फिल्मों में लग जा छोड़ दें तो बाकी जितनी भी फिल्में हैं जो मेंस उसमें के कैरेक्टर थे वो स्ट्रांग होते हैं, इस फिल्म में क्या विमेंस कैरेक्टर स्ट्रांग है? हाँ, जो किरदार मैं निभा रही हूँ वो श्योरली स्ट्रांग कैरेक्टर है, पर सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है। अभी म्यूजिक के बारे में जानना चाहेंगे, फिल्म में कैसा म्यूजिक है? इट्स लार्जली बैकग्राउंड स्कोर, ऐसे कोई प्लेबैक सॉन्ग्स नहीं है फिल्म में, पर आई थिंक दैट इज इन कीपिंग विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म। इस फिल्म के बाद आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ, मैं मेरी अगली रिलीज होगी लकी चाम, जो मैं अजीज मिर्जा के साथ कर रही हूँ,
और फिलहाल तो यही है। विजय, थैंक यू। हल्ला बोल। हल्ला बोल।